for हेलो। this. It is हाँ a, I mean, remarkable. जी, Uh, नहीं बिल्कुल और ठीक कह रहे हैं। तो सर बढ़ते अब हम लोगों का 4 बज गया है। अब जी औपचारिक शुरुआत के लिए हम लोग अपने जो स्टूडेंट कोऑर्डिनेटर्स हैं, उन लोगों से जी कहेंगे कि वो इस कार्यक्रम का संचालन अब प्रारंभ करें। तो जी आज जी के जो कोऑर्डिनेटर्स हैं प्लीज़ प्रोसीड विथ योर एक्टिविटी। और हम लोग इनफॉर्मल चैट को यहाँ पर बंद करते हैं। आप अपना प्लेटफ़ॉर्म लीजिए और कार्यक्रम को आगे बढ़ाइए। Yes, ma'am. Am I audible? Yeah, you are audible, very much audible. Welcome. Namaskar. You welcome. You welcome, sir. A very good evening to you, sir. So now, as this is our OSH session, so for this session we kept the topic as Farm Bill and Labor Law Amendment Act 2020. It is whether it's going to be a game changer or not. So for that, I would like to give a brief history, how why we are going to amend this farm bill and why we are going to amend the labor law as well. So for that, as we all know, when we have got the independence in 1947, since then the farmers were going to sell their produce, which is being going to be produced by their lands or the fields directly to the consumers. For that, they used to take the loans from the money lenders and they used to charge a very high interest. So because of that, they used to get trapped into a very wide variety of vicious circle. In that, they are very difficult to come out of that vicious circle, so it becomes very difficult for the farmers. So for solving this kind of problem, government came into existence in 1963, and he has brought an act which is known as APMC Act, which is Agricultural Market Produce Consumers Act, which is the Okay, Okay. sir. Thank you, sir. It's an APMC Act which was being brought in 1963 for the protection of the farmers to bring out of this vicious circle, which were in which the farmers were being trapped in before. So for that, in APMC mandis were being created. In that, the farmers used to take the produce which is being coming out of the lands or the fields to the APMC markets, and the markets used to have two kinds of things, like how the money is how the produce is going to be sold over there. So for that, they used to have an auction. In auction, there are the two kinds of things. One is the MSP and the second is price discovery. As we all know that there are 22 crops in India which is being considered for the MSPs. Like MSP, if I talk about, it is a minimum selling price, or you could say the minimum support price for the farmers, below which any price or below which the price of any of the crop is not going to be considered. So that is the MSP, and for that 22 crops are being considered under the MSP. And the second is a price discovery. The as I have already discussed, there are 22 crops which come under this MSP, and apart from that 22 crops, they comes under the price discovery. Price discovery is nothing but it depends on how the demand of that particular crop depends, and how the supply is going to be happen of that particular crop from the farmer side is going to be considered in the price discovery matters. So this was the act. And if I tell you one thing, when the farmers are going to take the produce which is going to come out from the land, they used to take it to the APMC mandis. In that, there are some commercial agents. They use in Hindi we used to call them artiyas as well. They used to take the produce from the farmers, and that commercial agents take it to the traders, and those traders then purchase it from the APMC mandis, and then these traders used to give it to the wholesalers, and then to the retailers, and then to the small vendors. So as you could say, the farmers and to the consumer, there are a lot of small you could say middlemen, which is going to be entrapped and which is going to increase the price of any of the commodity or any of the crop which a consumer is going to be consumed at that time. Let's suppose I have an onion which a farmer is going to produce, and its cost is around, if I say, it's 40 rupees per kg, and
the farmer is going to get only around 20 rupees kg, and the consumer, or that we are from our side, if I talk about, we are going to purchase from the market of 50 rupees per kg. So those 30 rupees is going to be considered with the middlemen. The farmers are going to get only 20 rupees, and the consumers is going to purchase that onion of rupees 50. So that you could say it is a biggest flaw which this APMC Act is going to have, that there are lots of middlemen, and because of that the price of the commodities is going to increase and increase. And the second flaw is that that onion is going to be stored for a long period of time with the farmers. Because of that, the you could say the price and the quality of that commodity is also going to be decreased. So there's two factors: the price is going to be increased, and the quality of that product is going to be decreased. So these are the flaws. And the third flaw, if I talk about of this APMC Act, is that who is going to be trader. So many of you of us used to be say that the traders are going to have a certain link with the political leaders, or you could say with the political parties. So that is a politics which is going to be played in the terms of the traders, who is going to be traders. So I think the political influence in the APMC Act and in the system should be removed. As we have seen in 1991, LPG has been brought. That is a liberalization, privatization, and globalization. LPG. What happens in that? Yes, sir. What happened is that the government has taken out of control from many of its PSUs, that is the public sector undertakings. So in that way, the state government should also take its control out of this APMC Act. Not fully take out of its act, but there should be a certain restrictions. There should be certain cross checks in that that whether the MSPs is going to be followed by all the traders. It should not be violated by any of the trader. That should be going to be mandated for all the things. So these are the few needs which have been seen, that there is a need to amend this APMC Act. Because of that this farm bill has been taken in this era. So if I talk about what were the things, what were the new laws which is being considered in this APMC Act, there are three laws, and there are the three bills. The first one is the Farmer Empowerment and Protection Agreement on Price Assurance and Farm Services Bill 2020, and the second is the Farming Produce Trade and Commerce Promotion and Facilitation Bill 2020, and the third is the Essential Commodity Amendment Bill 2020. So these are going to be the game changer for in the farmer side, but only for the big farmers, or you could say those are having a large patch of area. For those farmers only, it's going to be a game changer, not for the small farmers, because it is being considered that if you have seen that the state government used to consider and used to abrogate few of the mandis in every of the specific area. So this bill says that you will have to take your produce to the other mandis, and you could take it out of the state as well. But what happens to the small farmers is that how they're going to afford the transportation charges. So that is going to be very difficult for the small farmers, but it's going to benefit the big or you could say the large farmers. Those are having a large patch of area, or for large produce of area for themselves. So these are the few flaws, and these are the few positive aspect and the few of the negative aspect which I have told about the farm bill. And there are many more other things, because I'm not the perfect one to tell you all the details and all the things which is going to be happen in this. So if I come to the second topic which we have kept as in this OSH session, that is the Labor Law Amendment Act 2020. I say this also, there were there are three laws. Ayush, can you hear me? Yes. Today, I'm Yes, sorry to see that you started directly your topic. So at least the topic should have been introduced and a little introduction of OSH also, because our guest speaker, he also need to know what is the forum and who is going to speak and what is going to be agenda. So how this thing got missed today.
So please take care of everything. This is like any Yes, other ma'am. formal program for all of us. We are going to upload it on our university website and on our YouTube. So many people are going to see it. So at least people must understand what has started and who is speaking. Even you forgot to introduce yourself. So we need to start from the very beginning, and then you can just take up forward. Okay. So please introduce about the topic, about the OSH, and then tell about yourself, and then continue with your whatever is left out. Okay. So please do that. Yes, ma'am. Thank you. Yes, ma'am. As half of the topic has been discussed already, so I'm sorry for that, and I'm really sorry because from two of the sessions I was not able to attend because of my health issues. Ayush, you are not audible. You are Ayush, you not are not audible. audible. आवाज नहीं आ रही आयुष. But madam, you are audible. Ayush is not. हाँ, आयुष को हम लोग नहीं सुन पा रहे हैं अभी. अगर इसमें हमारे स्टूडेंट कोऑर्डिनेटर्स में यामिनी या अंशिका या दूसरे स्टूडेंट्स हैं यहाँ पर, तो वो प्लीज इसको देखें. अदिति और भी बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं, आप इसको देखिए. जब तक आयुष कनेक्ट नहीं हो पा रहे हैं तब तक आप इसको फॉरवर्ड आगे ले जाइए प्रोग्राम को. एक्चुअली हमारे यहाँ एमएससी फाइनल के पेपर्स भी लगे हुए हैं, प्रैक्टिकल्स, और उनके प्रोजेक्ट वाइवा भी चल रहे हैं साइड बाय साइड. तो हमारे बहुत सारे स्टूडेंट नहीं ज्वाइन कर पाए हैं, वो बाद में इसको देखेंगे जब हम अपलोड कर देंगे. हमारे साथ आज सारे हमारे रिसर्च स्कॉलर्स, गेस्ट फैकल्टी, सब्जेक्ट एक्सपर्ट और स्टूडेंट्स हैं जिनका एग्जाम नहीं है, वो ही हमसे जुड़ पाए हैं. तो यामिनी, अगर आप जुड़ गए हो तो कार्यक्रम को फॉर्मली आप आगे बढ़ाओ. यामिनी, आर यू देयर? अदिति, यामिनी. Good evening, ma'am. Good evening, sir. हाँ, Good अदिति. evening, everyone. My name is Aditi. I am here the advisor in OSH. OSH के बारे में मैं थोड़ा सा इंट्रोडक्शन आपको देना चाहूंगी पहले. OSH जो हमारा फोरम है, ये टू द स्टूडेंट है, फॉर द स्टूडेंट है एंड बाय द स्टूडेंट्स है. इसमें जो भी हम फंक्शन करते हैं सब स्टूडेंट द्वारा ही ऑर्गेनाइज किया जाता है, उन्हीं द्वारा मैनेज किया जाता है और वही इसको आगे संचालित भी करते हैं. तो ये एक फोरम है जहाँ पे वो अपने पसंद का कोई भी टॉपिक लेते हैं, जिस भी टॉपिक पे उनको डिस्कस करना होता है उस पर वो डिस्कस करते हैं, सारी चीज़ ऑर्गेनाइज भी वही करते हैं और उसके बाद उसको प्रेजेंट भी वही करते हैं. और ये हमारा फोरम सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि इसमें अदर देन एकेडमिक्स हम चीज़ें को कवर करने की कोशिश करते हैं और हर डिपार्टमेंट का बच्चा इसमें इंक्लूड हो सकता है. इवन अदर यूनिवर्सिटीज़ के भी बच्चे कई बार इसमें ज्वाइन होते हैं, उनको भी इससे बहुत कुछ सीखने को मिलता है. ये हमारा थोड़ा सा ओपन स्टूडेंट आवर इसी के लिए इसका नाम है, क्योंकि ये ओपन है सभी के लिए और इसमें स्टूडेंट आके अपने मन की जो भी बात है या वो जो भी सोचते हैं उस रिलेटेड टॉपिक से, जो उस दिन पर्टिकुलर किसी चीज़ का टॉपिक होता है उससे रिलेटेड वो उसको बताते हैं और शेयर करते हैं अपनी बातें और फीलिंग्स को. तो दिस इज़ ऑल अबाउट OSH. एंड कोई और जो स्पीकर है अगर वो बोलना चाहे अब इस टॉपिक के बारे में कुछ, या कोई जो नेक्स्ट है जो इसके बारे में कुछ बताना चाहता है, तो प्लीज़ यू आर मोस्ट वेलकम. Anyone? I think no. मेरे ख्याल से आयुष भी नहीं है, so I think मैम अब we should introduce our guest. अदिति, अभी आयुष कुछ बोल रहा था और yes, आयुष ma'am. का इनकम्प्लीट रह गया था, लेकिन इसके अलावा कुछ स्पीकर्स ने अपने नाम दिए थे, स्टूडेंट स्पीकर्स ने भी नाम दिए थे. तो वो पहले अपनी बात कह लें इससे पहले कि हम अपने मुख्य अतिथि को सुने और उनके बारे में उनका परिचय प्राप्त करें. जो स्टूडेंट अपनी बात कहना चाहे वो कह दें, ताकि उनके जो इश्यूज हैं वो आज के हमारे जो विषय विशेषज्ञ हैं वो उनके बारे में भी कुछ उनको उत्तर भी दे पाएंगे और उनके कॉन्सेप्ट में कुछ क्लैरिटी आएगी. तो जो हमारे स्टूडेंट्स ने नाम दिया था आज स्पीकर्स में, ज्वाइन नहीं है अभी, वो अगर क्योंकि अपनी बात रखना चाहें तो शुरू करें. इसमें टाइम वेस्ट ना करें क्योंकि हम लोगों का समय सीमित है.
मैम आई थिंक वो स्टूडेंट्स जो है वो ज्वाइंड नहीं है इसमें और नहीं अभी। तो हम लोग फिर अपने आज के मुख्य अतिथि को ही इनवाइट करना चाहेंगे कि वो फिर बात को आगे बढ़ाएंगे। तो अदिति, आप देखो कि आज कौन कोऑर्डिनेट कर रहा है, और हमारे मुख्य अतिथि जी का परिचय भी देना होगा। यस मैम। आई थिंक कोई और स्टूडेंट है जिसको कुछ बोलना है, कहना है, नहीं तो आई विल कंटिन्यू। अदिति? नहीं है मैम। यस मैम। हाँ अदिति, यू कैन इंट्रोड्यूस द स्पीकर देन एंड ओके मैम। आगे बढ़ाइए, क्योंकि ओके हमें लग मैम। रहा है कुछ नेटवर्क इश्यूज भी है। बहुत सारी यस जगह पे मैम। लाइट नहीं आ रही है, बहुत सारी जगह पे वो हमें व्हाट्सएप पे पता चल रहा है कि प्रॉब्लम है। ठीक है मैम, आई विल कंटिन्यू। हाँ, आप कंटिन्यू करिए। I welcome our today's chief guest, Dr. Satyendra Kumar Singh. He is Joint Director in Agriculture Research and Soil Survey, UP Krishi Bhavan. He was Joint Managing Director, Uttar Pradesh Bhumi Sudhar Nigam, Bhumita Bhavan in Vibhuti Khand, Lucknow. Previously that he was state president at Uttar Pradesh Gadget Agriculture Officer Association. He was Pradhan Mahasachiv at Uttar Pradesh Adhikari Mahaparishad. I think आवाज इको कर रही है मेरी। But you are audible. Go ahead, please. Okay. Is President Alumni Association Chandrasekhar Azad University of Agriculture and Technology Kanpur. He is Senior Vice President All India Federation of Agriculture Association New Delhi. He was Senior Vice President Uttar Pradesh Adhikari Karmchari Mahaparishad Lucknow and manager at Indian Kung Fu team which took part in World Kung Fu Championship also. He is National Director at Dharm Bharati National Institute of Peace and Value Education, Lucknow, and National President at Tyagarchana Shanti Mission. Thank you, sir. And he has more than 100 articles published related to agriculture and allied subjects. So, sir, you are most welcome in this OSH session. Please, sir, over to you. Thank you. नमस्कार। सबसे पहले तो मैं प्रोफेसर शीला मिश्रा जी और उनकी टीम को बधाई देता हूं कि उन्होंने एक ये डिजिटाइज इंडिया करने की तरफ से सबसे बड़ा प्रयास ये चल रहा है और मैं सफल होते हुए यहाँ देख रहा हूँ। और कोविड-19 में जितना अच्छा हो सकता है समय का सदुपयोग, एनर्जी का सदुपयोग यहाँ हो रहा है। और अभी हमारे ये अदिति और आयुष ने इन तीनों फार्म रिफॉर्म्स लॉ और लेबर लॉ अमेंडमेंट के बारे में भी इतना विस्तार से बता दिया है कि मेरा कुछ काम इन लोगों ने हल्का कर दिया है। Are you feeling comfortable in Hindi? If not, yes sir, anything in which you are comfortable. सर हिंदी बेहतर रहेगा। तो नहीं, हिंदी वैसे मैं प्रेफर भी करूंगा। जैसे आपका मसौदे में ये किसानों के साथ जो आप अभी बात कर रहे हैं, तो उसका सबसे बड़ी बात ये है कि लोकल भाषा में, रीजनल भाषा में और सरल भाषा में होना चाहिए था, किसान पढ़ करके और उसको अपना एग्रीमेंट कर सके। जो कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग की है, ऐसे भी हमेशा रीजनल और लोकल लैंग्वेज को प्रमोट करना चाहिए। तो जो और हमारे विद्यार्थी आए हुए हैं, कुछ सम्मानित हमारे विद्वजन भी इसमें कहीं जुड़े होंगे। और मित्रों, सबसे पहले आप सभी का मैं इसमें स्वागत करता हूं, विशेष रूप से विद्यार्थियों का, और बधाई देता हूं मैडम को, विद्यार्थियों को कि इस बात के लिए कि बहुत अच्छा टॉपिक जो आजकल चल रहा है उसका चयन करने के लिए। और मुझे लगता है कि जब हम लोग अपनी वार्ता खत्म कर लेंगे तो हमारे विद्यार्थी और जो भी लोग सुन रहे हैं कुछ न कुछ अपने घर अच्छी चीजें लेके जाएंगे और क्लैरिटी के साथ जाएंगे। रूरल इंडिया इज अ रियल इंडिया। अगर आप देखें तो उत्तर प्रदेश और हिंदुस्तान
की जो खुशहाली है वो किसानों के खेतों से और गांवों से निकलती है। अगर किसान खुशहाल है, गांव खुशहाल है, तो देश खुशहाल होगा। और अभी आपने देखा होगा हमारे डायनामिक प्राइम मिनिस्टर ने अभी ये घोषणा करी है कि हम 2000 जब 75वें साल की हम मनाएंगे अपनी स्वतंत्रता दिवस, तो हमारे किसानों की आय दुगना होगी बाई 2022। दैट मीन्स डबलिंग इनकम ऑफ द फार्मर्स। और इस कोविड-19 ने ये सिद्ध कर दिया है कि न केवल हिंदुस्तान का बल्कि पूरी दुनिया का वर्तमान और भविष्य कृषि में ही निहित है। अगर इस कोविड पेंडेमिक 19 में अगर एग्रीकल्चर हिंदुस्तान में न होता तो संभवतः ये कंट्री कोलैप्स कर गई होती। तो अभी जो हमारे यहाँ जो ये 3 ऐतिहासिक एग्रीकल्चर कानून बने हैं और एक जो है श्रम सुधार संशोधन है, मैं समझता हूँ कि ये बहुत बड़ा एक मील का पत्थर साबित होने जा रहा है। और मुझे लगता है कि अगर ये चारों बिल ट्रू स्पिरिट में, जैसा कि मसौदे में दिया गया है, अगर इसको क्रियान्वयन किया जाए तो हम लोग पुनः एक बार सोने की चिड़िया और कृषि ऋषि परंपरा की तरफ आगे बढ़ पाएंगे। और गांधी जी ने, आप जानते हो, एक बार कहा था कि जिस धंधे पर, धंधा माने खेती बाड़ी पर 3/4 लोगों की जीविका निर्भर है, उसको शीर्ष प्राथमिकता दी जानी चाहिए। अगर इसको शीर्ष प्राथमिकता नहीं दी जाती है तो निश्चित तौर पे ये आत्मघात के समान होगा। आज का जो टॉपिक है वो अगर आप देखें तो प्रवासी, जो आपने लेबर लॉज की जो अमेंडमेंट हुआ है उसमें देखिए तो प्रवासी भाइयों को भी, प्रवासी श्रमिक भाइयों को ध्यान में रख के भी सुधार किया गया है। तो सबसे पहले तो मैं ये कहूँगा कि हमें विद्यार्थियों को भी ये बात कहनी है कि हमें इस वक्त जो कोविड-19 पेंडेमिक चल रहा है, इसमें एक जो विशेष बात है वो ये है कि जान भी जहान भी दोनों का ध्यान रखना है। जीवन को भी देखना है और जीविका को भी देखना है। आपके लिए जीविका पढ़ाई लिखाई है और जब तक दवाई नहीं है तब तक कोई ढिलाई नहीं करनी है। और इसमें ये भी कहते हैं कि जीवन भी और जीविका भी आपको देखना है। और फॉर द लाइटर नोट, एक बार एक विद्यार्थी ने मैडम शीला मिश्रा से पूछा कि भाई आजकल के युग में सबसे अच्छा करियर कौन सा है, तो मैडम ने कहा कि भाई इसमें अच्छा इंसान बनो, ये सबसे अच्छा करियर है और इसमें कोई कंपटीशन भी नहीं है। और मैं समझ पाता हूँ कि जो बात मैं लास्ट में कहने वाला था उसको पहले से शुरुआत कर रहा हूँ मैं, कि अगर नियम कानून तो अपनी जगह है, अगर इसको इम्प्लीमेंट करने वाले लोग अच्छे होंगे तो कोई कारण नहीं है कि हमारे देश में क्रांति न हो। सारी समस्या जो है वो दिक्कत इस बात की है कि हमको इम्प्लीमेंट करने वाले लोग अच्छे नहीं हैं और उसको सिचुएशन को थोड़ा सा दूसरे ढंग से देखते हैं, इसलिए नहीं हो पाता है। तो मुझे लगता है कि अगर आदमी अच्छा हो तो सब होगा। एक बात आपको ये बतानी है कि ये जो चारों रिफॉर्म्स हैं, पर्टिकुलरली 3 जो एग्रीकल्चर बिल हैं, रिफॉर्म्स हैं, ये तीनों स्वामीनाथन कमीशन की रिपोर्ट में 1908 में और भानु प्रताप कमेटी ने 1990 में, जब तत्कालीन प्रधानमंत्री विश्वनाथ प्रताप सिंह जी थे और देवीलाल जी एग्रीकल्चर मिनिस्टर थे, तो उन्होंने भी इस रिपोर्ट को अपना दिया था। लेकिन पॉलिटिकल विल की कमी के कारण ये इम्प्लीमेंट नहीं हो पाया। Thanks to our dynamic and very enlightened Prime Minister नरेंद्र मोदी जी, जिन्होंने इस तीनों बिल को न केवल पार्लियामेंट में प्रस्तुत किया बल्कि इसको कानून भी बना दिया है। आज ये बिल नहीं रह गया बल्कि ये तो हमारा कानून बन गया है और इसको अब बस इम्प्लीमेंट होना है। तो मैं ये कहना चाहता था कि इसके बारे में मैं एक उसके बारे में जो आपका अभी 4-5 चारों अमेंडमेंट बिल है, इनके बारे में मैं 4 बिंदुओं पे आपको बताऊंगा। पहले तो कि ये कानून क्या है, उसका एक शब्द में क्या मीनिंग होता है, फिर उसका प्राविधान क्या है 1660 में बताऊंगा,
वर्तमान में क्या व्यवस्था है, इसके लाभ क्या है और इसका विरोध क्यों हो रहा है। जो एक मैडम का ये सुझाव था कि आजकल इतना डिबेट क्यों हो रहा है, तो विरोध क्यों हो रहा है, और अंत में इसमें जो कमियां रह गई मुझे समझ में आता है उसके बारे में मैं सलाह दूंगा। सबसे पहले तो जो ये आपका पहला है कृषि उत्पाद व्यापार वाणिज्य संवर्धन एवं सुविधा कानून 2020, फार्मर्स प्रोड्यूस ट्रेड कॉमर्स प्रमोशन एंड फैसिलिटेशन लॉ 2020। तो नाम से ही स्पष्ट है कि यह व्यापार और वाणिज्य से संबंध में है। एक शब्द में इसको समझना हो तो इट इज फ्री मार्केट एंड फ्री ट्रेड, इज नथिंग बट इट इज ओनली मुक्त बाजार और मुक्त व्यापार है ये। नो बॉन्डेज, नो लिमिटेशंस। कोई भी व्यक्ति जिसके पास आपके ये क्या कहते हैं आधार कार्ड है, वो ये कोई भी सामान खरीद सकता है और बेच सकता है, हिंदुस्तान के किसी भी इलाके में जाके बेच सकता है। जैसे कि आपने कहा कि एक देश एक बाजार, अभी हमारे काफी प्रधानमंत्री जी ने नारे दिए हैं कि वन नेशन वन निशान, एक देश एक संविधान, एक देश एक टैक्स और एक देश और एक प्रधान की तर्ज पर ही ये वन नेशन वन मार्केट का कंसेप्ट दिया गया है। इसका जो मुख्य उद्देश्य है वो ये है कि किसानों को लाभकारी मूल्य दिया जाए। अब किसानों को ये छूट है कि अपने उपज का देश के किसी भी हिस्से में बेचने के लिए स्वतंत्र है, और ये बैरियर फ्री, डिस्ट्रिक्ट फ्री, इंटर फ्री, इंट्रा एंड इंटर स्टेट फ्री मार्केट हो गया है। यानी कि आप पहले प्रतिबंध ये था कि अपने जिले में भी अब बेचने में दिक्कत थी, जिले से आगे जाना, टैक्स देना पड़ता था, फिर स्टेट में भी आपको दिक्कत होती थी, और फिर अगर दूसरे प्रदेश में जाना है इसको लेके तो उसमें तो तमाम तरह के आपको सेस और प्रतिबंध हुआ करते थे। तो इससे आपको, और अच्छी बात यह है कि इसमें कोई भी फीस नहीं है। जैसे अगर आप चले जाइए मार्केट में अभी अपना उपज लेकर के किसान भाई जाते हैं तो उसमें करीब करीब 13-14% के 10 से 15% के बीच में उनको तमाम तरह के शुल्क देने पड़ते हैं, जिससे कि आज की डेट में मुक्त हो जाएंगे। और एक ये भी कर दिया है कि गवर्नमेंट ने कोई भी एमएसपी, जिसकी बात कर रहे थे अभी हमारे मिस्टर आयुष, और एपीएमसी जो हमारी राजकीय मंडियां हैं, एपीएमसी को हम लोग मंडियों से जोड़ते हैं, जो हमारी रेगुलेटेड मंडीज हैं, इनको यथावत रखा गया है, इसमें कोई चेंज नहीं किया गया है। और पहले जो व्यवस्था थी, वर्तमान में व्यवस्था ये थी कि किसान मंडियों में ही बेचने के लिए मजबूर था, जिसको एपीएमसी कहते हैं। केवल आज की डेट में केवल 6% जो हमारे किसान हैं वो एमएसपी का लाभ ले पाते हैं, यानी अपना उत्पाद एपीएमसी में और एमएसपी पर बेच पाते हैं, लाभ ले पाते हैं। और उचित भंडारण के अभाव में उनको फोर्स सेल करना पड़ता है। और इसकी सबसे जो बुराई थी कि एजेंट के, जैसा कि हमारे आयुष बता रहे थे कि ये जो मिडिल मैन है बिटवीन प्रोड्यूसर एंड कंज्यूमर, देयर लॉट ऑफ मिडिल मैन, दे आर द होलसेलर, दे आर द रिटेलर्स, एंड ये जो है इतना ज्यादा वो करते थे कि जो मान लीजिए 20 रुपया अगर किसान को मिल रहा है तो 100 रुपया जाके कंज्यूमर खरीदता था। तो ये करीब करीब जो 80 रुपये का गैप है वो मिडिल मैन लेता था। इस व्यवस्था में ये बात खत्म हो गई है कि ये जो पैसा है ये सीधे किसान की जेब में जाएगा और हमारा जो उपभोक्ता है उसको सस्ते दर पर मिलेगा। इस बात को कुछ ऐसे समझ लीजिए जैसे कि आपको यूनिवर्सिटी है, आपकी एक लखनऊ यूनिवर्सिटी है और लखनऊ के बगल में एक प्राइवेट यूनिवर्सिटी खोल दिया जाए तो आपको चॉइस अच्छा मिल जाएगा कि आप वहाँ भी जाएं, लखनऊ यूनिवर्सिटी पढ़ना चाहें तो वहाँ पढ़ना चाहें, अगर आपको यहाँ कोई कमी है तो आप बगल की एक प्राइवेट यूनिवर्सिटी है वहाँ भी जा सकते हैं। इन दोनों यूनिवर्सिटीज में अच्छी कंपटीशन होगा और आपको चॉइस और मिल जाएगा। इसी तरह से किसानों को एपीएमसी जो हमारा मार्केट है उस मार्केट का तो चॉइस उनके पास है ही है, इसके अलावा हिंदुस्तान के कहीं भी जाकर के वो अपने प्रोड्यूस को खरीद सकते हैं, बेच सकते हैं। और पहले ऐसा नहीं था। अब इससे आप देखेंगे तो लाभ क्या होगा। लाभ तो ऑब्वियस है कि बिचौलियों के जब नहीं रहेंगे, हमारे मिडिल मैन नहीं रहेंगे तो उनका मार्जिन
उनका नेचुरली वो हमारे प्रोड्यूसर को जाएगा या हमारे कंज्यूमर को जाएगा। और किसान अपनी मर्जी से किसी भी मार्केट का चुनाव कर सकता है और दूसरे राज्यों को भी, जैसे मान लीजिए कोल्ड स्टोरेज है या आपका मान लीजिए भंडारगृह है या प्रोसेसिंग यूनिट्स हैं, उनको भी अपना उपज बेच सकता है अगर उसका अच्छा कहीं मिल रहा है। और इससे न केवल किसानों का लाभ होगा, जो हम एक किसान भी कंज्यूमर है, उसको भी जब बाजार में जब अपना बेच लेता है, बाजार से जब वो ले आता है अपने घर पे खरीदने जाता है, तो उसको सस्ते दर पे उसको उपलब्ध भी होगा। और जो इसमें सबसे अच्छी बात है कि न इसमें कोई परिवहन शुल्क देना है, न इसमें कोई लेवी है, न कोई टैक्स है। और इसका एक एडवांटेज ये है कि एक एपीएमसी जो हमारी पुरानी ये व्यवस्था वर्तमान में चल रही है और जो नई व्यवस्था आ रही है, इन दोनों के बीच में एक हेल्दी कंपटीशन होगा और अल्टीमेटली उसका लाभ मिलेगा हमारे देश की इंफ्रास्ट्रक्चर को, हमारी ग्रोथ को और किसानों और उनको। अब सवाल उठता है कि इसका विरोध क्यों हो रहा है। तो विरोध के बारे में मैं 4 बिंदुओं पे आपसे कहना चाहूंगा। किसान क्यों विरोध कर रहे हैं, कमीशन एजेंट क्यों विरोध कर रहे हैं और राज्य सरकारें क्यों विरोध कर रही हैं और जो राजनीतिक दल हैं वो क्यों विरोध कर रहे हैं। सबसे पहले हम किसानों की बात करें तो किसान को ये भ्रम दिया गया है या हो भी सकता है, दोनों बातें मैं अभी नहीं कह सकता क्योंकि तो अभी मिनिमम आपको 2 साल लगेगा इस कंसेप्ट को लागू होने में। लागू तो हो चुका है, मतलब इसका रिजल्ट आने में। तो इसमें यह है कि उनको ये लगता है कि हमारी मंडियां जो रेगुलेटेड मंडीज हैं, एपीएमसीज हैं, वो खत्म हो जाएंगी। दूसरा उनको ये लगता है कि धीरे धीरे हमारा जो मिनिमम सपोर्ट प्राइस है, एमएसपी है, न्यूनतम समर्थन मूल्य है, वो भी खत्म हो जाएगा। इसलिए ये विरोध कर रहे हैं किसान। और दूसरा जो हमारे कमीशन एजेंट इसलिए विरोध कर रहे हैं कि वो मिडिल मैन्स, उनका हमारे किसानों पे बहुत होल्ड है। हमारे देश में 85% स्मॉल एंड मार्जिनल किसान हैं, उनके पास पैसा है नहीं तो उनको पैसा भी देते हैं। उनके चंगुल में एक तरह से मनी लेंडर की तरह है, इनको वो देते हैं, यही उनके प्रोडक्ट को बाजार में खरीदवाते हैं, उनको पैसा दिलाते हैं, जरूरत पड़ने पर उनकी मदद भी करते हैं। तो उनका एक अधिकार समाप्त होने जा रहा है। इसलिए ये जो है हमारे कमीशन एजेंट्स हैं, ये लगे रहते हैं पॉलिटिकल पार्टीज के माध्यम से या जो भी उनका इन्फ्लुएंस है उनके, उसके माध्यम से ये आंदोलन कर रहे हैं। राज्य सरकारों का इसलिए इसमें विरोध हो रहा है, विशेष तौर से विपक्षी सरकारों का, और विशेष तौर से मैं बात करूंगा पंजाब, हरियाणा, पश्चिमी उत्तर प्रदेश का। यहाँ पर इसलिए विरोध कर रहे हैं सॉरी, कि इन मंडियों से इन स्टेट का खर्चा चलता है। 10 से 15% जो स्टेट एक्सचेकर है दैट कम्स फ्रॉम मंडीज, एपीएमसीज। जिस दिन ये उनके पैरेलल एक दूसरी संस्था खड़ी हो जाएगी या खड़ी हो गई है, तो किसान वहां अपना सामान बेचेगा तो किसान उनको शुल्क देगा नहीं, लेवी नहीं देगा, मंडी टैक्स नहीं देगा, मंडी शुल्क नहीं देगा, मिडिल मैन्स को नहीं देगा। तो इन सरकारों की आय का जो मुख्य स्रोत है, और पंजाब हरियाणा में तो किसानी एक ऐसी बात है कि हर परिवार, हर नेता उससे जुड़ा हुआ है। यही कारण है कि आपने देखा होगा खेती किसानी को लेकर के आपने उसकी जो 25-30 साल से एलाइड पार्टी थी, ये शिरोमणि अकाली दल, उसने इनसे नाता तोड़ लिया ओनली बिकॉज ऑफ कि फार्मिंग कम्युनिटी हमसे कहीं नाराज ना हो जाए। अब राजनीतिक दलों को क्या इसमें नुकसान है, वो ये चाहते हैं कि भाई हमारा जो शुल्क मिलता है उससे खोना नहीं चाहते हैं। इसलिए ये चारों किसान, कमीशन एजेंट, स्टेट गवर्नमेंट्स एंड ये जो आपके सत्तारूढ़ दल है, जो विपक्ष में है या पक्ष में है, इन चारों को ये लगता है कि हमारा जो पॉलिटिकल करियर है और हमारा जो लाभ है, ये दोनों इससे उनका नुकसान होगा। इसलिए वो विरोध कर रहे हैं और कुछ हद तक इनका विरोध करना जायज भी है। जैसे अब मैं मुझे एज ए एक्सपर्ट राय देनी हो तो मैं ये गवर्नमेंट को अभी भी सुझाव देना चाहूँगा कि जो एपीएमसी है और एमएसपी है, इन दोनों को जो हमारा एग्रीमेंट है, जो मसौदा अभी तय हुआ है हमारा, ये रिफॉर्म्स बिल, ये जिसको कहते हैं हम कि फ्री मार्केट में फार्मर्स प्रोड्यूस ट्रेड कॉमर्स प्रमोशन एंड फैसिलिटेशन लॉ, इसमें एमएसपी को, एपीएमसी को शामिल किया जाना चाहिए।
अभी ये दोनों के बारे में कोई उल्लेख नहीं किया गया, समाप्त नहीं किया गया। ये भी कहते हैं कि हमने समाप्त नहीं किया, लेकिन इस मसौदे में उन्होंने शामिल भी नहीं किया है। और दूसरी बात है कि एक चीज और इंश्योर करना चाहिए इस मसौदे में, इस हमारे डॉक्यूमेंट में, कि किसी भी दशा में एमएसपी से नीचे किसानों की खरीद नहीं किया जाएगा। और ये नहीं, अगर उससे नीचे खरीद करते हैं तो जो खरीदने वाला व्यक्ति है उसको भी दंड का प्राविधान होना चाहिए। एक हमारे यहाँ संस्था है कृषि मंत्रालय में, कृषि लागत एवं मूल्य आयोग, एसीपीसी बोलते हैं, एग्रीकल्चर कॉस्ट एंड प्राइसेस कमीशन, जो मूल्य तय करती है। ये एक ऐसी संस्था है जो सजेस्ट करती है गवर्नमेंट, क्योंकि ये रेट होना चाहिए इस प्रोडक्ट प्रोड्यूस का, लेकिन एक तरह से ये उसको संवैधानिक दर्जा नहीं मिला हुआ, जस्ट इट इज एडवाइजरी जारी करती है कि ये होना चाहिए। मेरा अपना मानना है कि इस एसीपीसी को की सिफारिशें बाध्यकारी होना चाहिए और इसको कॉन्स्टिट्यूशनल का दर्जा होना चाहिए। और ये भी करना चाहिए कि वन नेशन वन एमएसपी, पूरे देश में तो ऐसे करते हैं, लेकिन इसको इन स्पिरिट में लागू करना चाहिए। तो मैं समझ पा रहा हूँ कि जो मैंने बात बताई थी कि आपको इस लॉ का प्राविधान क्या है, फ्री मार्केट, दूसरा इसका प्राविधान में वर्तमान में क्या व्यवस्था है, इससे लाभ क्या है और क्यों विरोध कर रहे हैं, और थोड़ा क्या सुधार होना चाहिए, इन तीनों 5 बिंदुओं पर मैंने आपको बताया। दूसरा जो बिंदु है मूल्य आश्वासन पर किसान सशक्तिकरण एवं सुरक्षा समझौता कानून 2020, फार्मर्स एग्रीमेंट ऑन प्राइस एश्योरेंस एंड फार्म सर्विसेज एम्पावरमेंट एंड प्रोटेक्शन लॉ 2020। इसका सीधा मतलब ये है बच्चों, या जो भी लोग, उनका मतलब ये हुआ कि ठेके की खेती, दूसरी भाषा में कहें तो संविदा पे खेती, इसको और स्पष्ट करना हो तो अनुबंध पे खेती, और अंग्रेजी में अगर आप जानना चाहते हैं कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग इसको कहते हैं। ये कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग तो हमारे सदियों से चला आ रहा है, एब्सेंटी लैंडलॉर्डिज्म है, जैसे गांव का जमींदार है, बहुत से लोग हैं, आप ही लोग देख रहे होंगे जो लखनऊ में आके हम लोग बस गए हैं, हमारा खेती वहाँ है, हमने बटाई दे रखी है, और वो गांव का आदमी जो चाहे लैंडलेस है या स्मॉल मार्जिनल फार्मर है, वो आदमी खेती करता है और वो हमको कुछ पैसे देता है। तो उसी का ये जो कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग है, ये जो कानून बना है, ये उसी का एक इम्प्रूव्ड वर्जन है। ये हमारे यहाँ से सदियों से होता रहा है। तो ये एक अनुबंध के आधार पर आजादी मिलेगी। इसमें सिर्फ ये है कि इसमें किसानों की आय बढ़ जाएगी, एक लिखित समझौता होगा, और क्रॉप को लगाने से पहले ही एक अनुबंध होगा। वो हमारी चाहे वो आपके कॉरपोरेट्स हों या आपकी कंपनीज हों या कोई इंडिविजुअल हो, उनके साथ एक प्रोसेसिंग यूनिट हो, उनके साथ जो है एक लिखित समझौता होगा। इससे कई फायदे होंगे। एक तो यह होगा कि जोखिम कम हो जाएगा किसान का, क्योंकि जोखिम जो भी उठाएगा वो कंपनी उठाएगी। दूसरी बात है कि इसमें किसानों की आय में वृद्धि होगी, भी समय से पहले उनको पता चल जाएगा। और एक जो बड़ी अच्छी बात इसमें की गई है कि ये सिर्फ उपज के लिए कॉन्ट्रैक्ट होगा। लोगों को ये कंफ्यूजन ये है कि किसानों के खेत को ले लेंगे, ऐसा नहीं है। सिर्फ उस किसान से जो किसान के खेत पे जो उपज पैदा होगी उसके लिए कॉन्ट्रैक्ट है, न कि जमीन के लिए होगा। और एक अच्छी बात इसमें यह है कि जो भी किसान प्रोड्यूस बेचेगा उसको 3 दिन के अंदर, इस मसौदे में तय किया गया है कि 3 दिन के अंदर उस कंपनी को या जो भी बायर होगा उसको भुगतान करना होगा। और यही नहीं, आपको जो ये कंपनीज उसमें एग्रीमेंट करेंगी उनको क्वालिटी सीड, उनको जो है ये प्लांट प्रोटेक्शन मेजर्स, उनको फर्टिलाइजर्स, उनको लोन की सुविधा, क्रॉप लोन की सुविधा और क्रॉप इंश्योरेंस की सुविधा भी उपलब्ध करानी होगी, जो कि बहुत बड़ा ये एक इस मसौदे का एक एडवांटेज रहेगा। किसान को कुछ नहीं करना है, उसके पास जमीन है, उस जमीन को उनको सीधे सीधे एग्रीमेंट करना है। और इससे लाभ ये होगा कि जो हमारे कंपनीज होंगी वो गाँव में इंफ्रास्ट्रक्चर, जैसे कोल्ड स्टोरेज है, आपका भंडारण है, आपको रोड्स हैं, इसकी जो है हमारी इंफ्रास्ट्रक्चर में विकास होगा। और इसमें वैसे मान लीजिए मुकदमा हो जाता है हमारे किसान और जो परचेजर के बीच में, तो उसके लिए भी व्यवस्था की गई है, त्रिस्तरीय व्यवस्था की गई है कि कैसे इसका समाधान होगा। और वर्तमान में जो
सुविधा है। और आज जो हुआ है उसमें यही फर्क है कि पहले अलिखित था, ये लिखित होगा। और जैसे पहले हमारे यहाँ जो है केवल आलू, गन्ना, कपास, चाय, कॉफी, फूलों के उत्पादन के लिए अनुबंध किया जाता था, अब इसमें जो है हमारे सारी सीरियल्स, पल्सेज, ऑयल सीड्स, इन सभी क्रॉप को शामिल करने की बात है। और अच्छी बात यह है कि किसी भी कंपनी को किसान के खेत पर कोई भी कंस्ट्रक्शन अलाउड नहीं है। नो कंस्ट्रक्शन इज अलाउड एट एनी कास्ट। ऐसा नहीं कि वो खेत के किसान खेत पे जाएगा, अपना कुछ गोदाम बना लेगा या कुछ और रहने के लिए आदमी बना लेगा, ऐसा अलाउड नहीं है। और जो कीमत तय होगी उसमें बराबरी का हिस्सेदारी, दोनों किसान और कंपनी आमने सामने बैठेगी और उनका वार्ता होगी और उसमें बराबर की हिस्सेदारी होगी, कितने पर हम देंगे। लेकिन इसमें एक और अच्छी बात यह है कि किसान अपना समझौता कभी भी तोड़ सकता है। यानी उसको मिड टाइम लगता है कि ये हमने घाटे का सौदा है, कहीं और बेहतर हमको मिल सकता है, तो उसको फ्रीडम है कि अपने समझौते को बीच में ही तोड़ सकता है और उसको जुर्माना नहीं लगेगा। लेकिन इसके उलट अगर कंपनी समझौता तोड़ती है तो उसको जुर्माना देना होगा। ये बहुत बड़ी बात है। इसमें मतलब अगर देखा जाए तो ये हमारा रिफॉर्म बहुत अच्छा हुआ है। तो इसके लाभ क्या होंगे मैं बताना चाहूँगा कि एक तो बुआई से पहले किसान को पता लग जाएगा कितना पैसा हमको मिलना है और लिखित समझौता उसके सामने होगा। न्यूनतम मूल्य की गारंटी हो जाएगी, जबकि वर्तमान में नहीं मिलता है। इनको रिस्क भी कम हो जाएगा। कृषि निवेश की, खाद बीज की व्यवस्था कर सकेंगे। बाजार मूल्य अगर ज्यादा है तो किसान को उस कंपनी को बढ़े हुए मूल्य पे देना होगा, ये भी उसमें वो है। और विवाद अगर कोई हो जाता है किसान और उस कंपनी के बीच में, तो एसडीएम को नामित किया गया है कि उस विवाद को वहां पे निस्तारित करना होगा। समय सीमा भी उसको दी गई है। और किसानों को सशक्त बनाने के लिए 10,000 इस देश में फार्मर्स प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशंस की स्थापना की जा रही है। यानी कि जो देश के बताते हैं 86%, अभी हमारे आयुष कह रहे थे कि हमारा मार्जिनल स्मॉल फार्मर्स है, तो उनके हितों का बड़ा नुकसान होगा, उनकी बार्गेनिंग पावर कम हो जाएगी। इसके लिए 10,000 एफपीओ माने फार्मर्स प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशंस। जैसे मान लीजिए दलहन कहीं होता है, कहीं तेल होता है, कहीं फूल होता है, कहीं सब्जी होती है, इन सब का ग्रुप अलग अलग बना के इनका एक ऑर्गेनाइजेशन 1000 किसान का, 2000 किसान का बनाया जाएगा। उनके जो प्रतिनिधि होंगे वो एक टेबल पर बैठ करके हमारे उस कंपनी के प्रतिनिधि के साथ वार्ता करेंगे। तो 10,000 एफपीओ बनाने की इसमें व्यवस्था किया गया है। तो अगर ये ट्रू स्पिरिट में लागू हो गया तो कहीं ये नहीं होगा कि वो हमको जो है हमारा बार्गेनिंग पावर कम हो पाएगा। अब सवाल ये उठता है कि विरोध क्यों हो रहा है। किसानों को ये लगता है, उनको ये भ्रम में दिया गया है कि अगर कोई विवाद मान लीजिए कंपनी और किसान के बीच में होता है तो उस केस में कंपनियां चूंकि उनके पास ऑर्गेनाइज्ड मनी है, उनके पास रिसोर्सेज हैं, तो उनकी दादागिरी चलेगी। कहने का मतलब है कि कंपनियां लाभ उठाने का प्रयास करेगी। और दूसरा डर है जो अभी ये हमारे आयुष कह रहे थे कि भाई स्मॉल मार्जिनल फार्मर्स हैं, तो बड़ा जो किसान होगा वो चूंकि 85% हमारे यहाँ मार्जिनल फार्मर्स हैं, तो उनकी मार्केटेबल सरप्लस बहुत कम होता है। वो तो अपने लाइवलीहुड के लिए करता है, तो बड़ी कंपनियां उनको शायद अनुबंध पर नहीं लेंगी, वो बड़े किसानों से करेंगे। दूसरा जो ये डर है कि हमारा किसान जो है मालिक से मजदूर हो जाएगा अपने ही फार्म पे। जैसा कि देखा गया, अगर देखें अपने इलाकों में बहुत जगह आप लोगों का अनुभव होगा कि चाहे बहराइच में जाइए, इधर लखीमपुर खीरी में जाइए, तो हमारे सरदार जी लोग कितने उद्यमी लोग हैं, अपने परिश्रम से आए यहाँ पर खेती करने के लिए। और आज स्थिति है कि जिन लोगों की यहाँ खेती करते थे उनको ही वो अपने मजदूर रखे हुए हैं। तो ये उनको लगता है कि हम मजदूर हो जाएंगे। अंग्रेज आए थे हमसे व्यापार करने के लिए और हम ही को कंपनी बना करके और हम ही को उन्होंने अपना जो है मजदूर बना लिया। और एक बात इसमें लोगों को विरोध का यह भी कारण है कि हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट जाने की इजाजत नहीं है। जैसे मान लीजिए कोई विवाद आपको हो गया
तो आप हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट नहीं जा सकते। आप विवाद का निपटारा एसडीएम के यहाँ करेंगे। एसडीएम के यहाँ से नहीं हो पाता है तो आप कलेक्टर के यहाँ जाएंगे। 3 टियर स्ट्रक्चर है उसमें। इससे क्या होगा कि ब्यूरोक्रेसी बहुत बढ़ जाएगी। एसडीएम का जैसे आज भी कहा जाता है लाल फीताशाही ब्यूरोक्रेसी या नौकरशाही इसको हम कहते हैं, उनको इतना ज्यादा पावर मिल जाएगा इसमें कि वो जैसे चाहे उस चीजों को इंटरप्रेट करेंगे। अगर वो चाहेंगे कि कंपनी के फेवर में करना है तो वो कर सकते हैं, अगर वो चाहेंगे किसान के फेवर में करना। जो बात में कह रहा था कि इंसान बनना, अगर इंसान ठीक है, फैक्ट्री आज इंसान बनाने की होनी चाहिए। अगर इंसान ठीक है तो हमेशा जस्ट काम करेगा। अगर मान ली इंसान ठीक नहीं है, वो अफसर ठीक नहीं है, तो उसको जहाँ लाभ दिखेगा वहां जाएगा। तो लाभ नेचुरली उसको कंपनी से मिलेगा, ना कि मार्जिन और स्मॉल फार्मर से। तो उनको ये कॉम्प्रिहेंशन है कि इससे जो है नौकरशाही थोड़ी बढ़ेगी, हम लोगों को हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट जाने की छूट नहीं है। अब इसमें जो मैं 2-3 बातें अगर और सुधार हो जाए और आप लोगों के संज्ञान में लाना चाहता हूँ कि ये जो एफपीओ बनाने की बात है, इसमें आप लोग विद्यार्थी अगर जिनको एग्रीकल्चर में रुचि है, ये किसानों को जागृत करने की जरूरत है। या जो किसान है, आप लोग भी खेती बाड़ी घर में करते होंगे, जहाँ पे जिस चीज की बहुतायत में खेती होती है, चाहे सब्जी है, फल है, फूल है, आपका ये दाल चावल या आपका ये तिलहन दलहन, इनके अलग अलग सेल्फ हेल्प ग्रुप या उनका ग्रुप बना करके एफपीओ बनाइए। गवर्नमेंट इस पे बहुत पैसा दे रही है। मतलब अगर मान लीजिए आपने 100 रुपया एक किसान से लिए, 1000 लिया तो 10 लाख रुपया इकट्ठा हो गया। तो इमीडिएटली सेम डे 10 लाख रुपया आपके खाते में आ जाएगा और आप उससे अपने खाद, बीज, पेस्टिसाइड या आप कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग या इस तरह का आप जो है सीड प्रोडक्शन का काम कर सकते हैं, वेयर हाउस बना सकते हैं, आप जो है सीड प्रोसेसिंग यूनिट खोल सकते हैं, प्रोसेसिंग यूनिट खोल सकते हैं। गवर्नमेंट इसमें बहुत ज्यादा पैसा खर्च कर रही है। और आपने से युवा भी जो हमारे सुन रहे हैं, हमारी मातृशक्तियां भी हैं, इनको भी अगर एग्रीकल्चर में रुचि है, एक एरिया ऐसा है जहाँ पे आप भी जाकर के क्षेत्र में, ग्रामीण क्षेत्र में क्रांति कर सकते हो। और इससे अच्छा करियर आपको संभवतः आप पढ़ाई लिखाई एमएससी, बीएससी, पीएचडी जो भी कर लो, लेकिन इतना अच्छा करियर शायद आपको और कहीं नहीं मिलेगा। बट इट इज ए चैलेंजिंग टास्क। आपको फील्ड में जाना पड़ेगा, आपको करना पड़ेगा, किसानों से मिलना पड़ेगा, बहुत बड़ा काम है ये। और ये जो एफपीओ का है, इसलिए सरकार ने किया हुआ है कि जो एफपीओ का संगठन शक्ति रहेगी तो वो कंपनियों के साथ टेबल पर बैठ के बार्गेन कर पाएंगे। और एक और मैं सुझाव ये देना चाहूंगा कि इस जो भी कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है, मसौदा तैयार हो रहा है, डॉक्यूमेंट तैयार हो रहा है, वो वहाँ की लोकल भाषा में, सरल और स्थानीय भाषा में होना चाहिए। क्योंकि आप लोग भी देखते होंगे जब हम लोग अपना मेडिकल इंश्योरेंस कराते हैं, या उस इंश्योरेंस में क्या लिखा है, हम पढ़े लिखे लोग कभी नहीं पढ़ पाते हैं, समझ नहीं पाते हैं और दस्तखत कर देते हैं। बाद में जब पैसा आपको मिलता है पता लगा इतना काट लिया, ये कर लिया, वो कर लिया। तो किसान की तो बहुत बड़ी बात है। ये डॉक्यूमेंट मस्ट बी इन द रीजनल लैंग्वेज और दैट शुड बी वेरी सिंपल फॉर्मेट उसका होना चाहिए। क्योंकि ये लोग कंपनी वाले क्या करते हैं कि इतना उसको कॉम्प्लिकेटेड बना देंगे कि बिना सीए के, चार्टर्ड अकाउंटेंट के आप जो है उस बात को समझ ही नहीं पाएंगे, बिना वकील के। और एक बात और इसमें जो है कि समय से माने कोई डिस्प्यूट आ गया तो समय सीमा निर्धारित होनी चाहिए। 1 सप्ताह, 10 दिन, 15 दिन में करने का होना चाहिए। और इसमें सुझाव मेरा ये कि ये एपीएमसी एक्ट है, मैंने मंडीज है और एमएसपी, इसको यथावत जारी रखा जाए। और विवाद की दशा में मान लीजिए आपको कलेक्टर से नहीं मिल पाती है तो न्याय तो किसान को हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट जाने की छूट होनी चाहिए। और जब तक ये सख्त कानून नहीं होगा तब तक जो है, मैं समझ पा रहा हूँ, किसानों का हित सुरक्षित नहीं होगा। जो तीसरा कानून आपके यहाँ है कि आवश्यक वस्तु संशोधन कानून 2020, इसेंशियल कमोडिटीज एक्ट 2020, इसका सिर्फ मतलब ये है अनलिमिटेड होर्डिंग। एक शब्द में समझना हो आपको इस बात को, दैट इज अनलिमिटेड होर्डिंग। कोई भी आपके पास ये क्या कहते हैं, आधार कार्ड होल्डर है, वो जा करके अपने घर में, अपने इलाके में कहीं भी जितना चाहे चीज खरीद करके होर्डिंग कर सकता है, कोई उसको प्रतिबंध नहीं है। इसका बैकग्राउंड थोड़ा सा समझाना चाहूंगा, ऐसा क्यों हुआ है।
ये जो ईसी का एक्ट था, अभी हमारे वो आयुष बता रहे थे कि ईसी एक्ट जो 1955 में लागू हुआ था, उसमें इसलिए किया गया था कि उसमें अनाज का संकट था। देश में इतना अनाज का उत्पादन नहीं होता था कि सबको मिल सके, और होर्डिंग अगर कर लेगा कोई तो अकाल की स्थिति में हमारे जो गरीब थे उनको खाने को नहीं मिल पाता था। तो उस वक्त उन्होंने ये तय किया था कि 1955 में कि ये सरकार खरीदेगी, अपने उसमें रखेगी, और जरूरत पड़ने पर पीडीएस पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम के माध्यम से किसानों को या सामान्य जन को उपलब्ध कराएगा। आज की डेट में हमारे यहाँ देखिए आप 300 मिलियन टन खाद्यान्न है, और 320 के लगभग हमारे पास ये हॉर्टिकल्चरल प्रोडक्ट्स हैं। दूध में हम दुनिया में पूरा आगे हैं। तो आज ये समस्या कोई इसेंशियल कमोडिटी को होल्ड करने जैसी कोई समस्या नहीं है, मतलब कोई आदमी रख सकता है। लेकिन इसमें जो प्राविधान, जो खास बात इसमें यह किया गया है कि अनलिमिटेड होल्ड तो कोई कर सकता है, लेकिन मान लीजिए कोई दैवीय आपदा आ गया, अकाल आ गया, बाढ़ आ गया, सूखा आ गया, या मान लीजिए बाहर से आपका युद्ध हो गया, या कोई दैवीय आपदा आ गई, या कोई इस तरह की प्राइस राइज अचानक बहुत हाई हो गया, 1.5 गुना से ज्यादा हो गया, उस केस में स्टेट गवर्नमेंट को, सेंट्रल गवर्नमेंट को यह राइट है कि वो इस पे फिर से चेक लगाए कि आप अनलिमिटेड होल्ड नहीं कर सकते हैं, और पीडीएस के माध्यम से बांटने का रहेगा। और इसमें जो है विशेष तौर से अनाज है, दलहन, तिलहन, प्याज, आलू को आवश्यक वस्तुओं की सूची से बाहर कर दिया गया है। और इससे भी कहा जाता है कि मतलब कृषि निवेश बढ़ेगा, कीमतों में स्थिरता आएगी, एक हेल्दी कंपटीशन होगा। और इसके लिए गवर्नमेंट ने करीब 10,000 करोड़ रुपए का एक निवेश रखा हुआ है। वर्तमान व्यवस्था आप जानते ही हैं कि ये 1955 में इसी एक्ट लागू किया गया था, और हमारे बहुत पहले भी कह रहा था कि प्राचीन काल से, अभी आयुष भी कह रहे थे कि भाई हमारे यहाँ किसान स्वतंत्र था अपनी चीज बेचने के लिए, खरीदने के लिए। ये लॉर्ड कॉर्नवालिस जब हमारे यहाँ थे, लॉर्ड कॉर्नवालिस, उसने एक व्यवस्था ये दिया था, अन्न भंडारण पर रोक लगाई थी। अगर आप देखिए 2020 में, तो इस वक्त हमारे पास 97 मिलियन टन अनाज का भंडारण है इस वक्त, और 76 मिलियन टन धान का क्रय हम लोगों ने किया हुआ है। तो आज देश में कहने का मतलब है कि कोई स्कैर्सिटी नहीं है। और आज इस एक्ट को बहुत पहले ही खत्म किया जाना चाहिए था, लेकिन बहुत विलंब से आया, लेकिन देर से आया, दुरुस्त आया। इस कानून के आने से एक लाभ ये होगा कि इसमें निवेश बढ़ेगा, पार्टीज तमाम लगाएंगी, फूड सप्लाई चेन जो है हमारी, उसमें बड़ी कंपनियां आएंगी, और विदेशी निवेश, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट भी इसमें होगा। और इसमें कोल्ड स्टोर पे है, वेयर हाउस पे है, भंडार पे है, प्रोसेसिंग यूनिट्स भी अच्छी होंगी, और खाद्य आपूर्ति श्रृंखला में कीमतों में स्थिरता आएगी। सबसे बड़ी बात यह है कि जो कीमतें फ्लक्चुएट करती हैं उससे कम आएगी। और इसमें है कि अगर फसल बहुत अच्छी हो गई तो उनके दाम, कीमत बहुत कम नहीं होगी, और अगर फसल अच्छी होने की दशा में कीमत बहुत कम नहीं होगी, यानी कि देयर विल बी प्राइस स्टेबिलिटी। और अगर भंडारण की अच्छी सुविधा हो जाएगी तो अनाज की बर्बादी भी कम होगी। आज की डेट में शायद आप लोगों को पता होगा कि हमारे यहाँ दलहन तिलहन में करीब 25 से 30% खाद्यान्न में पेरिसेबल कमेटी, हमारी सब्जी फूल है, उसमें करीब 15 से 20% हमारी बर्बादी हो जाती है। लेकिन जब इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप हो जाएगा तो ये बर्बादी पर हमारा चेक हो जाएगा, तो ऐसे ही हमारा उत्पादन और इसका लाभ हमें मिलेगा। इसका विरोध क्यों हो रहा है, एक मेन सवाल मैडम का ये था कि, और आप लोग भी जानना चाहते हैं, इसका विरोध क्यों हो रहा है। इनको ये लगता है कि कंपनियों की मोनोपोली हो जाएगी, सबसे बड़ा ये बात है। दूसरी बात है, ये जो कंपनी के हाथ में आ जाएगा तो ये अधिक दाम पर बेचेंगी, आम आदमी की मुश्किलें बढ़ेंगी, और जब असामान्य परिस्थिति मान लीजिए आ गया, जैसे कोविड-19 आ गया आपके पास, अकाल आ जाए, बाढ़ आ जाए, युद्ध आ जाए, कोरोना जैसी स्थिति आ जाए, तो आम आदमी को ये खाद्यान्न पाना एक तरह से बड़ी भारी चुनौती होगी। इसलिए इसका विरोध किया जा रहा है। और इसी के असीमित इसेंशियल कम्युनिटी असीमित छूट हो जाने से क्या हो जाएगा कि कारपोरेट और कंपनियां ही दाम को तय करने में अपना रोल अदा करने लगी। ये अप्रिहेंशन है हमारे विरोधियों का, जो लोग करते हैं
इसमें भी 2-3 सुझाव मैं देना चाहूँगा। एक तो ये है कि ये FCI जो हमारा फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया है, जहाँ हम अपना MSP के माध्यम से खरीदते हैं और उनको रखते हैं, उनकी स्थिति बहुत अच्छी नहीं है भंडारण की। उनको सुधार के साथ जारी रखा जाए और क्रय केंद्र जो हमारे यहाँ होते हैं MSP पर, उनको भी ये कंटिन्यू किया जाएगा तो मैं समझता हूँ कि एक अच्छा सा बैलेंस बना रहेगा। और इसमें निर्यात नीति को भी इससे लिंक करना पड़ेगा, इसेंशियल कमोडिटी एक्ट से, तो इसमें जो है इसका लाभ मिलेगा। और चौथा कानून जो आपने एक जो ये दिया हुआ है, हमने बताया आपको शुरू में ही कि ये जो श्रम संशोधन कानून 2020 है, लेबर अमेंडमेंट एक्ट जो है, लॉ है, इसके पीछे का बैकग्राउंड ये है कि जो अभी आपने देखा होगा कि कोविड-19 में हमारे किसान भाई, प्रवासी किसान या मजदूर बाहर से आए, उनको कितनी दिक्कतें हुई, तो उनको लेकर के ये 73 साल से सुधार की बात चल रही थी कि इस गवर्नमेंट ने पहली बार ऐसा ये पॉलिटिकल विल दिखाया और इसको ये लागू करने का प्रयास किया। इसमें 3 वो है, इंडस्ट्रियल रिलेशन कोड 2020, ऑक्यूपेशनल सेफ्टी हेल्थ एंड वर्किंग कंडीशंस, कोड ऑन सोशल सिक्योरिटी, सबसे बड़ी बात है सोशल सिक्योरिटी की ये बात करता है। अब इसमें देखिए सबसे एडवांटेज ये होगा कि संगठित हो किसान या असंगठित अनऑर्गेनाइज सेक्टर में हो, सभी को अपॉइंटमेंट लेटर देना जरूरी होगा। पहले ऐसे ही आपको रख लिया बंधुआ मजदूर की तरह से, कोई रिटन डॉक्यूमेंट नहीं और आपके साथ, अब ये कंपलसरी कर दिया गया है कि उनको अपॉइंटमेंट लेटर देना होगा, उनको ID कार्ड देना होगा और वेतन का भुगतान जो होगा वो जो है डिजिटल माध्यम से करना अनिवार्य कर दिया गया है। साल में एक बार उनका हेल्थ चेकअप होगा, सफाई और कार्यस्थल पे जो उनका वर्किंग कंडीशन बेहतर किया जाएगा और जो एक ग्रेच्युटी की व्यवस्था भी की गई है, जो उनको पारितोषिक मिलता है सेवा के बदले में, वो भी रखा जाएगा। और इसको ये जो प्राविधान क्योंकि ये विषय जो है समवर्ती कॉन्करेंट लिस्ट का है, इसलिए इसमें केंद्र और राज्य दोनों इसमें वो कर सकते हैं, सुधार कर सकते हैं। हमारे देश में 44 कानून केंद्र करता है और 100 करीब स्टेट में है। तो इन 44 कानूनों को मिला करके वर्तमान में इसको 4 में इसको शिफ्ट किया गया है। इसमें मिनिमम वेजेस को इंश्योर किया गया है कि मिनिमम वेजेस एक्ट लागू किया जाएगा और जो 300 से अगर कम कोई कंपनी है, 300 से ज़्यादा अगर आपके पास एम्प्लॉय हैं, उन पे सारे कानून लागू किए जाएंगे। उससे नीचे वाले में थोड़ी सी दिक्कत है कि अगर 300 से कम है तो कुछ हमारे नियोक्ता या कहा जाए कि एम्प्लॉयर को थोड़ी सी उसमें हायर एंड फायर की स्थिति आएगी। और इसमें एक अच्छी बात ये किया गया कि कोई कर्मिक जो विरोध हमारे नेता लोग कर रहे हैं लेबर लॉ का, वो ये कह रहे हैं कि 60 दिन पहले आपको नोटिस देनी होगी किसी कर्मचारी को या किसी संगठन को हड़ताल करने के लिए, और 60 दिन बाद आप कर सकते हैं। अगर मुकदमा आपने कर रखा है या किसी पार्टी ने कर रहा था तो मुकदमे का डिसीजन आने के 60 दिन के बाद ही आप जो है कोई आप ये हड़ताल की कार्रवाई कर सकते हैं। एक अच्छी बात है कि जो प्रवासी हमारे भारतीय है उनका डेटा बैंक बनाने की इसमें बात की जा रही है। महिलाओं के लिए जो कार्य की अवधि है उसमें भी ये निश्चित किया गया इसमें कि सुबह 6 बजे से लेकर शाम के 7 बजे तक होगा। अगर इसके बाद कोई महिला से वो कंपनी काम लेती है तो उसकी सुरक्षा की जिम्मेदारी उसकी होगी, यानी वो रिस्पॉन्सिबल लायबल होगा किसी तरह की मिसहैपनिंग के लिए। अगर जो हमारा मजदूर है उसको ओवर टाइम करना है तो अब दूना दर देना पड़ेगा। मान लीजिए आपने सुबह 6 से शाम के 4 बजे तक किया, उसके बाद अगर काम ले रहा है तो आपको दूने दर पे उसको ओवर टाइम मिलेगा। और सप्ताह में 6 दिन से ज़्यादा काम नहीं करना होगा, यानी कि संडे उसको छुट्टी मिलेगी। पहले सप्ताह में 48 की जगह 72 घंटे का किया, फिर बाद में इसको 48 घंटे में कर दिया गया है। और ये जो अभी कोविड-19 के परिप्रेक्ष्य में ये किया गया है कि सभी को बुनियादी सुविधाएं जैसे मास्क है, सफाई, सैनिटाइजर है, टॉयलेट है, इसकी व्यवस्था करना जरूरी है। इसमें जो विरोध हो रहा है वो इस बात का हो रहा है कि जो जहाँ पे
300 से कम वर्कर हैं, वहां पे नियोक्ता को किया गया हायर एंड फायर। एक टर्म है, आपने देखा हुआ कि वो जिसको चाहे उसको रखे, जब चाहे उसको निकाल दे, उस पे विदाउट नोटिस। इस पे लोगों को जो है ये लगता है कि इसमें ये भी किया गया है कि इंस्पेक्टर राज को एक तरह से लेबर जो हमारे अफसर हुआ करते हैं, इसको भी खत्म कर दिया गया है। तो हमारे कुछ नेताओं को ये लगता है कि भाई इनका इंटरफेरेंस कम होगा तो हमारे कर्मचारियों का शोषण बढ़ जाएगा, और हमारा जो अगर सरकारी इंटरफेरेंस इस कंपनियों में नहीं रहेगा तो हमारा जो है मजदूर बंधुआ मजदूर हो जाएगा। और इसमें जो सुझाव मेरा हो उसमें यही कहना है कि ये मिनिमम वेजेस एक्ट को तो अनिवार्य है ही, इसको ट्रू स्पिरिट में लागू किया जाना चाहिए, और लाल फीताशाही जो हमारी व्यवस्था है उसमें भी कमी आनी चाहिए, और श्रमिकों की सुरक्षा, स्वास्थ्य, वर्किंग कंडीशन को ठीक से कानून के अनुसार सुनिश्चित किया जाए। और सबसे बड़ी बात यह है कि मजदूरों को, इन दोनों के पक्ष में मजदूरों के प्रसन्नता का ख्याल रखा जाए, न कि आपके एम्प्लॉयर की प्रसन्नता का ध्यान रखा जाए। ये 4 महीने आपने जो हमें दे रखा था, इसके बारे में मैंने कुछ बताया आपको। अगर आपको लगता है कुछ और जानना हो तो आप का स्वागत है। और मुझे ये लगता है कि विरोध कुछ ऐसे ही है जैसे कौवा कान ले गया तो हम अपना कान नहीं देखते हैं, हम जो है उसके पीछे भागते हैं। ये तीनों कानून जो है मुझे लगता है कि एक बहुत हिस्टोरिकल है, बट इसमें शंका एक ही बात की है कि जैसा मैंने बार बार कह रहा हूँ कि आदमी अच्छा रहेगा, सब ठीक हो जाएगा। आर्मी बनाने की फैक्ट्री बनाई जानी चाहिए, और आप विद्यार्थियों से मैं अनुरोध करूंगा कि आप लोग भी एक ऐसे फैक्ट्री का निर्माण करिए, वो यूनिवर्सिटी फैक्ट्री तो है ही है, एक ऐसे युवा या भारत का निर्माण किया जाए जहाँ पे गलत को गलत कहा जाए, सही को सही कहा जाए, इन दोनों के बीच में वो किया जाए। और अगर ये चारों कानून मैं समझ पा रहा हूँ ठीक से पालन हो, तो जो एक प्रधानमंत्री जी कहते हैं, ग्रोथ मस्ट बी कॉन्स्टेंट, सस्टेनेबल एंड इंक्लूसिव, यानी कि हमारा विकास का जो मॉडल है वो लगातार होना चाहिए, सतत होना चाहिए, टिकाऊ होना चाहिए, और उसमें सभी वर्गों को शामिल किया जाना चाहिए, यानी सबका साथ, सबका विश्वास के साथ ही ये हो सकता है। और इन्हीं शब्दों के साथ एक बार पुनः मैं ये कहना चाहूँगा कि अगर आपका कोई इसके बावजूद भी कोई चीज़ ऐसी रह गई हो, अगर आप लोगों को कुछ क्वेरी है तो यू आर मोस्ट वेलकम। और आप लोगों की ये जिज्ञासा इस विषय पे सुन करके जो आयुष बोल रहे थे, मुझे तो बड़ा अच्छा लगा कि तुम इतना ज़्यादा जानकारी खुद ही रखते हो इस विषय में। आई एम हैप्पी। और नेचुरली जब इसमें कुछ करोगे तो यू कैन बी लाइक ए लीडर एंड यू कैन लीड द मॉसेस। You must think your career in this field also. FPO वाले में, फार्मर्स प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशंस को बनाने में play a very I mean important and vital role. थैंक यू डॉक्टर सर। हमारे चैट बॉक्स में आपको बहुत धन्यवाद देना है कि आपने मुझे धन्यवाद मत दीजिए डॉक्टर सर। अभी आपसे हमारे चैट बॉक्स में है और उस पर क्लैरिटी चाह रहे हैं हमारे पार्टिसिपेंट्स। तो अदिति अभी आप पढ़िए और सर को जरा सा उन विषयों में बताइए जो चैट बॉक्स में लोगों ने शंकाएं जाहिर की हैं। यस मैम, थैंक यू सो मच सर, आपने बहुत अच्छे से क्लियर किए सारे पॉइंट्स। एक जो क्वेश्चन है उसमें जो कि है सैयद मेहंदी मोमिन का है क्वेश्चन कि जो ये अपर स्टॉक लिमिट हटा दी गई है तो क्या इसकी वजह से मतलब होर्डिंग बढ़ने का या जो ब्लैक मार्केटिंग वाला होता है वो वाला चांसेस बढ़ जाएंगे? नहीं, इसमें देखिए बताया ना कि आपको अपर लिमिट खत्म कर दिया। अब इस देश में समस्या क्या है? उत्पादन हमारे यहाँ इतना ज्यादा हो गया है कि अब समस्या हमारे सामने रखने की बात है। स्वतंत्रता के समय अगर आप देखिएगा तो द प्रोडक्शन ऑफ फूड ग्रेन्स वाज जस्ट 50 million tons in India, and right now it is 300 million tons.
दैट मीन्स इट इज 6 टाइम मोर। तो प्रॉब्लम हमारे सामने रखने की है, होर्डिंग की तो कोई बात ही नहीं है। और जो आपने बताया कि सरकार ने व्यवस्था कर रखी है कि अगर मान लीजिए कोई दैवीय आपदा आ गया, कोई युद्ध आ गया, कोई ऐसी सिचुएशन है नॉर्मल है, प्राइस राइज मोर देन 50% बढ़ गया है, तो उस केस में पुनः ये चेक लगा सकते हैं एसेंशियल कमोडिटी को। उस केस में इनको पूरा पावर है कि वो एक्सपोर्ट को बैन कर सकते हैं, वो आपके होर्डिंग को कम कर सकते हैं, ओपन मार्केट में आपको लाने के लिए मजबूर कर सकते हैं। तो ये एप्रीहेंशन जो है इसमें कोई वो आज की डेट में लागू नहीं था। हाँ, आज के 100 साल पहले की बात थी कि जब हमारे यहाँ उत्पादन नहीं था और दिक्कतें थी। आज ऐसी कोई समस्या नहीं। ओके, थैंक यू सर। नेक्स्ट क्वेश्चन ये था कि ओपन मार्केट इकोनॉमी जो कि यूरोप और अमेरिका में फेल हो गई थी, वहाँ के जो कि चीफ इकोनॉमिस्ट ऑफ यूएस डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर के रिकॉर्ड के अकॉर्डिंग इनकम ऑफ फार्मर्स इन अमेरिका इज ऑन डिक्लाइन। ऑल्सो द रेट ऑफ सुसाइड इन अमेरिका इज 45% हायर देन अर्बन। रूरल के मुकाबले में अर्बन में ज्यादा सुसाइड भी हो रहा है। तो इस पॉइंट ऑफ व्यू से क्या ऐसा वे मतलब जो फेल्ड सिस्टम है उसको लागू करना? आप भी दे रही हो कि रूरल एरिया में सुसाइड कम है और अर्बन एरिया में सुसाइड ज्यादा है। वहाँ पे असल में खेती किसानी जो यूरोप में और अमेरिका में वहाँ 2-3% लोग करते हैं और बड़ी हावी सब्सिडी पे करते हैं। और उनका जो लाइफ स्टाइल है, उनकी रिक्वायरमेंट्स इतनी ज़्यादा है कि वो किसी भी अर्बन के लाइफ स्टाइल से उनका बेहतर है। और वो उससे नीचे जब आता है उनका इनकम, तो वो सुसाइड या टेंशन में, स्ट्रेस में आ जाते हैं। हमारे हिंदुस्तान में ऐसी कोई समस्या नहीं है। हमारा हिंदुस्तान बड़ा ईश्वरवादी है, हर चीज को मानता है ये कर्मों की खेती है, जैसा वो ऐसा देती है। यानी कि आज हम गरीब हैं, आज हम अमीर हैं, आज प्रसन्न हैं, दुखी हैं, तो ये सब हमारे कर्मों की खेती है, उसको स्वीकार कर लेता है। बाहर का आदमी जो अर्बनाइट है, जो और लोग हैं, इसको स्वीकार नहीं कर पाते हैं। और ये क्योंकि खेती बाड़ी एक ऐसा महकमा है जिसमें आपको पसीना बहाना होता है। गांधी जी कहते हैं कि आपको रोटी खाने का हक तब तक नहीं है जब तक कि अपने हाथ से, अपने श्रम से, अपने पसीने से जो रोटी दो खाते हैं उतना पैदा करने की मजदूरी करते हो। यानी अगर आप इंजीनियर हैं, डॉक्टर हैं, प्रोफेसर हैं, अफसर हैं, वट एवर यू आर, इरिस्पेक्टिव ऑफ, आपको रोटी खाने का हक नहीं है। रोटी खाने का हक तभी है जब आपको अपने श्रम से पैदा करें। 2 रोटी अपनी किचन गार्डन में कहीं भी आप पैदा करते हो, किसी घर मजदूरी करते हो या समाज सामाजिक सेवा करते हैं, उसकी कीमत आपको अब रोटी के बराबर हो। और गांधी जी यहाँ तक कहते हैं कि वो आदमी चोर है, कहते हैं कि जो आदमी अपने श्रम से 2 रोटी पैदा नहीं करता है, चाहे वो देश का प्रधानमंत्री हो, राष्ट्रपति हो, इंजीनियर हो, डॉक्टर हो, अफसर हो, प्रोफेसर हो, व्हाटएवर, इररिस्पेक्टिव ऑफ एनी, उसको अपने स्वास्थ्य के लिए भी जरूरी है, प्लस अपने जीविकोपार्जन के लिए बड़ा जरूरी है। और जब आप अपने पसीने पर, अपने पे श्रम पे भरोसा करेंगे तो आपको किससे डरना है? जी सर। जीने के लिए 2 वक्त की रोटी चाहिए। कहते हैं ना, दाल रोटी खाओ, प्रभु को गुण गाओ। सारी समस्या आदमी की आवश्यकताएं अनलिमिटेड है, रिसोर्सेज आर वेरी लिमिटेड। उसके चक्कर में आदमी वो फंसा रहता है। तो यू हैव टू प्रायोरिटाइज योर रिक्वायरमेंट्स, योर प्रायोरिटीज एंड योर जो भी आपने लक्ष्य बना रखे अपने जीवन में, किसको पहले करना है, किसको बाद में करना है, किसको आज करना है, कल करना है, परसों करना है। तो ये समस्या सारा मन की स्थिति है। व्हाट यू थिंक यू बिकम द प्रोडक्ट ऑफ योर थॉट। आप जैसा सोचिएगा वैसा ही आप बनिएगा। खराब सोचिएगा खराब होगा, अच्छा सोचिएगा अच्छा होगा, बुराई में अच्छा और अच्छी बात है। तो सारी समस्या का समाधान है कि अपने मेंटल स्टेटस को फिजिकल स्टेटस के साथ आपको एक मैच कराना है। यू हैव टू बी ए थॉरो बॉडी, माइंड एंड स्पिरिट। बिल्कुल सर, थैंक यू सर। एक क्वेश्चन और था कि 85% फार्मर्स जो कि है उनके पास स्मॉल लैंड है और उनका मतलब जैसे बड़ी कंपनीज के साथ निगोशिएट या जो इंडस्ट्रीज हैं उनके साथ निगोशिएट करने की पावर उनके पास नहीं है। तो जो मिडिल मैन है वो वही हमारे, ऐसा तो नहीं वो मतलब फिर प्राइवेट फॉर्म ओपन करके वो एज अ ब्रोकर काम करेंगे?
बिल्कुल, ये तो हो सकता है, लेकिन इसीलिए हमने कहा कि उसमें आप जैसे युवाओं की भूमिका बहुत इम्पोर्टेंट है। हमारे जो जी छोटे सर। किसान को मैंने बताया कि उनको संगठित करना है, ऑर्गेनाइज सेक्टर में ले आना है, उनको इकट्ठा करके फार्मर्स प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशंस बनानी है, अलग-अलग चीज़ों का, जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया था कि एक सब्जी का ग्रुप हो जाए, एक दाल का ग्रुप हो जाए, एक तेल का ग्रुप हो जाए, एक फल का ग्रुप हो जाए, एक फूल का ग्रुप हो जाए। इनको जब आप संगठित एक जगह जब 100 किसान हो जाएँगे, मान लीजिए एक फूल खरीदने के लिए या वो सब्जी खरीदने के लिए, तो 100 किसान की जगह 1 किसान जाएगा और 100 किसान के लिए वो खरीदेगा खाद, बीज, तो उसको सस्ता भी मिलेगा, क्वालिटी भी मिलेगी और बार्गेन कर पाएगा। तो उसका एक ही समाधान है कि आप जो है उनको ये संगठित करें और इसमें आप लोगों का इम्पोर्टेंट रोल हो सकता है, क्योंकि अगर संगठित नहीं होंगे तब तक बार्गेनिंग पावर नहीं आएगी। इसलिए गवर्नमेंट ने आपको 10,000 किसान उत्पादक संगठनों को बनाने का लक्ष्य रखा हुआ है, किसानों को एम्पावर करने के लिए। छोटे किसानों की दिक्कत तो है, बात तो सही है, लेकिन अगर ये संगठित हो जाएँगे, तो कोई ताकत नहीं है कि उनको जैसे मान लीजिए कोई कोई आदमी कंपनी वाला करता है, 1000 किसान हैं, 1000 में 100 किसान जाके कंपनी के सामने खड़ा हो जाएँ किसी गलत बात के विरोध में, तो क्या करेगा कंपनी वाला? बिल्कुल मत मानेगा। बस ये करना है कि हमको उनको समझाना है, उनको राइट प्लेटफ़ॉर्म देना है उनको और उनको अपनी शक्तियों का एहसास कराना है कि यू आर द क्रिएटर। जैसे हमारे यहाँ हम सभी लोग तो पैरासाइट हैं, जैसे हम जितने लोग बैठे हुए चर्चा कर रहे हैं, वी आर ऑल पैरासाइट। किसान एक ऐसा व्यक्ति है जो कि परजीवी नहीं है, वो आदमी अपने दम पे है और यही वजह है कि वो देश को आज ये कोविड-19 में बचा के रखा हुआ है। हम आप जैसे लोग अगर कुछ भी कर लें, तो देश को जिंदा थोड़े रख सकते हैं। अरे आदमी खाएगा तो अन्न ही, कंप्यूटर तो नहीं जी, खाएगा। बिल्कुल सर। थैंक यू सर। आप लोग एक की जिम्मेदारी क्वेश्चन। है, एक बार और पुनः इसको रिपीट करना चाहता हूँ कि युवाओं का ये देश है और हमारे यहाँ 60% युवा हैं। इन लोगों का रोल बहुत इम्पोर्टेंट है, एग्रीकल्चर के फील्ड में आना चाहिए। इसमें असीमित संभावनाएँ हैं। बस इसमें दिक्कत यही है कि थोड़ा-सा आपको पसीना बहाना पड़ेगा, मेहनत करना पड़ेगा, थोड़ा धूप और छाँव आपको सहना पड़ेगा, थोड़ा जो है आपकी अपनी लाइफ़स्टाइल को कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा, भौतिकता को थोड़ा-सा छोड़ना पड़ेगा। लेकिन है इसमें बहुत मज़ा। आप ये करो, आप करके देखो और ये किसानों को एम्पावर करने की ज़िम्मेदारी हम ही लोगों की है। जी सर। सर शिव सिंह यादव हैं, एक उनका है क्वेश्चन कि फार्म मैनेजमेंट एक्ट हैज सब्सिडाइज्ड द सेक्शन 3 which provides power to central and state government to take action against unlimited stocking. Is this really help everyone? नहीं, लेकिन अब तो जब नया कानून आ गया तो उसकी अब अहमियत तो नहीं रह गई ना। अच्छा, तो जी ये सर। बात जो थी, ये 2020 सितंबर से पहले की बात थी। अब जो 2020 में ये लागू हो जाएगा, तो वो एक्ट अपने आप में वो हो जाएगा, दैट विल बी नल एंड वॉइड। तो उसका कोई रेलेवेंस नहीं है, आज की डेट में नहीं रहेगा। एक लास्ट क्वेश्चन था, वो तो बार्गेनिंग से रिलेटेड है। आई थिंक वो आप आंसर कर ही चुके हैं कि सारे फार्मर्स को संगठित होना पड़ेगा तभी बार्गेनिंग पावर आएगी। Yes, united we stand, divided we fall. That's very simple message. आप इकट्ठा होइए, शक्ति आपकी किसमें है? संघ में है, आपके यूनिटी में है। यूनिटी इज स्ट्रेंथ। वेरी सिंपल। तो इन किसानों को एम्पावर करने की जरूरत है, इनके साथ हम लोगों को युवाओं को जोड़ने की जरूरत है। और इस देश में गांधी जी कहा करते थे कि जो हिंसा नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट 1920 में हुआ था, जो चौरी चौरा कांड हुआ, तो उन्होंने वापस ले लिया था नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट को। वो कहते हैं कि अगर महिलाएं, मैं गलती किया कि मैंने पुरुषों को इस काम में लगाया, अगर मैंने अपने युवाओं को और महिलाओं को नॉन वायलेंस में आंदोलन में शामिल किया होता, तो ये जो घटना चौरी चौरा में हुई कि जला के थाने को वहाँ पे 25-30 पुलिस वालों को मार दिया गया और मुझे ये बंद करना पड़ा नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट, तो ये ना करना पड़ता। तो आज की मात्र शक्तियाँ 50% नहीं है, उनकी शक्ति तो मैं समझता हूँ कि दोगुनी है पुरुषों से। जी सर, बिल्कुल। और गांधी जी तभी सफल हो पाए, गांधी जी तभी सफल हो पाए, चाहे वो सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट हो, चाहे आपका क्विट इंडिया मूवमेंट हो, डू और डाई मूवमेंट हो,
या जो भी उन्होंने किया, जब महिलाएं उनके नेतृत्व में आगे आई, वो नॉन वायलेंस का जो उनका ये सिद्धांत था, सत्य अहिंसा, वो सफल हो पाया। क्योंकि पुरुष लोग जहाँ इकट्ठा हो जाते हैं वहाँ उनको जैसे किसी ने भड़का दिया तो लाठी लेके शुरू हो जाते हैं। महिलाएं इस मामले में बड़ी समझदार होती हैं, हिंसा को लास्ट ऑप्शन अपनाती हैं। तो मेरे समझ से इस टीम में मुझे लगता है, मैडम की टीम में मैं जो देख पा रहा हूँ, हमारी मातृशक्तियाँ ज़्यादा है, तो दे कैन प्ले अ वेरी वेरी इम्पोर्टेंट रोल इन ऑर्गेनाइजिंग दिस small and marginal farmer, which are almost 90% of the total farming community. बिल्कुल सर, थैंक यू सो मच सर, आपने बहुत अच्छे से हर पॉइंट को समझाया और जो जितनी भी कंफ्यूजन्स थी और किस लिए विरोध हो रहा है, क्यों इसका वो किया जा रहा है, इसके बारे में भी आपने हर एक पॉइंट को बहुत क्लियर किया है। थैंक यू सो मच। मैम से मैं रिक्वेस्ट करूंगी, मैम प्लीज आप अपना सर को बताइए। थैंक यू अदिति। सबसे पहले तो हम डॉक्टर साहब के प्रति बहुत हृदय से आभार व्यक्त करते हैं। थैंक यू सो मच डॉक्टर साहब कि आपने बहुत कम समय में हमने जो आपको इनवाइट किया और आपने उस पे अपनी सहर्ष सहमति दिया और बहुत विस्तार से जो सारे मुख्य बिंदु थे फार्मर्स बिल के, उसमें क्या नया था, क्या पुराना था, क्या लोगों का कारण है विरोध का, क्यों लोग उसके प्रति थोड़ा-सा आशंकित हैं, उसको सबको आपने बहुत विस्तार से बताया और मुझे तो बहुत लाभ हुआ है और मेरे ख्याल से हमारे साथ जो बच्चे जुड़े हुए हैं, जो रिसर्च स्कॉलर्स हैं और इसके बाद जो भी सोशल मीडिया और लखनऊ यूनिवर्सिटी फोरम से इस कार्यक्रम को देखेंगे, उनको भी पूरी स्पष्टता होगी कि हमें इस बिल के प्रति किस प्रकार से विवेचना करनी है और किस प्रकार से इसके ऊपर अपनी राय बनानी है। आपने बहुत से महत्वपूर्ण सुझाव भी दिए। मिनिमम सेलिंग प्राइस के ऊपर भी आपने कहा कि वो होगा तो अच्छा होगा और इंश्योर हो जाएगा जो फार्मर है उसका जो बिजनेस है उसका इकलौता यही काम है जिसको वो करता है। तो कंपनियों के हाथ में ये नहीं रहेगा कि वो अपने हिसाब से उसको कम और ज्यादा एक मिनिमम सेलिंग प्राइस से भी कम कर सकें। इसके साथ ही जो अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर के रूप में अभी तक कृषि कार्य कर रही है, वो एक ऑर्गेनाइज्ड सेक्टर के रूप में जब आ जाएगी, तो हमारे जो लेबर क्लास के जो बहुत ही मीडियम और माइनर लेवल पे, माइक्रो लेवल पे काम करते हैं, ऐसे सभी मजदूरों का भविष्य सुरक्षित हो पाएगा और उनको भी देश के बहुत सारे जो स्कीम्स हैं उनका लाभ मिलेगा और उनके वेलफेयर की चिंता करना उनके एम्प्लॉयर के लिए मैंडेटरी हो जाएगा। तो ये बहुत बड़ा अचीवमेंट होगा कि कंप्लीटली अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर से इसको एक ऑर्गेनाइज्ड रूप से हम रखेंगे और शायद इसमें फिर जो माइग्रेशन की इतनी समस्या हुई है, लोग अपनी जगह पर काम नहीं कर पाते थे, अपॉर्चुनिटीज की तलाश में बहुत दूर-दूर जाते थे और फिर लौट करके आते थे, तो वो न घर के न घाट के जैसी जो स्थिति थी, आज उनको थोड़ी स्टेबिलिटी भी मिलेगी। तो मुझे लगता है कि आपने बड़े विस्तार से सारे पक्ष को रखा है और आपका वो संदेश भी हम लोग बड़ी अच्छी तरह ग्रहण कर पा रहे हैं, जो कवि घाघ ने कहा था कि उत्तम खेती मध्यम बान और निषिद्ध चाकरी भीख निदान। आपने उस पर मुहर लगाई है क्योंकि आपका कृषि क्षेत्र में एक वैज्ञानिक के रूप में, एक प्रशासनिक अधिकारी के रूप में और एक समाज सेवी के रूप में भी बहुत विस्तृत अनुभव है। इसलिए हमें लगता है कि हमारे सभी श्रोता जो इस कार्यक्रम को देख रहे हैं, सुन रहे हैं, वो कम से कम इन पर विचार करने के लिए कुछ एक्सप्लोर करने की कोशिश करें। और जैसा आपने बताया और स्वयं आपने प्रयोग भी किया है कि गांव पर अपने आसपास के कस्बों में जाकर के पढ़े लिखे लोग यदि स्वयं सहायता ग्रुप के निर्माण में और उन तक जो हमारे मझोले या छोटे किसान हैं जानकारी पहुंचाने का कार्य करें, उनको किस प्रकार से, जैसे आपने ये बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी बताई है कि 10,000 किसान यदि मिल जाए तो उनके लिए एक फोरम तैयार हो सकता है और उसके लिए सरकार भी ग्रांट की व्यवस्था कर रही है और उससे जो भी खेती से संबंधित समस्याएं हैं उसका निराकरण किया जा सकता है। तो ये बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है एक सेल्फ एंटरप्रेन्योरशिप की भी, कि किसी भी क्षेत्र में आप पढ़ रहे हो, कोई भी आपका कैरियर हो,
परंतु एक जो मूलभूत आधार है वो खेती है और रहेगी, क्योंकि भोजन के बिना सर्वाइवल संभव नहीं है। आप एक कपड़े में गुजारा कर लेंगे, पर एक रोटी के बिना आप गुजारा नहीं कर सकते। तो हम किसी भी विषय को पढ़ रहे हो, हमारा कोई भी क्षेत्र हो, परंतु खेती मजबूत हो, खेती सुरक्षित हो, खेती करने वाले जो किसान हैं वो खुशहाल हो, इसी में हम सबकी भलाई है। ये संदेश आपने स्पष्ट रूप से अपने इस वक्तव्य में दिया है। हम हृदय से पुनः आपका अभिनंदन करते हैं, हार्दिक साधुवाद करते हैं और अपेक्षा करते हैं कि भविष्य में भी आपका इसी तरह से मार्गदर्शन मिलता रहेगा। और क्योंकि कार्यक्रम की शुरुआत आयुष ने की थी, तो हम चाहेंगे कि आयुष ही इस कार्यक्रम का समापन की ओर वो कहें, अपने कुछ कमेंट्स भी साझा करें। उनकी बात भी कुछ अधूरी रह गई थी, पर मुझे लगता है उनकी बात पूरी हो गई होगी डॉक्टर साहब के वक्तव्य के बाद। तो एक फाइनल कमेंट्स के बाद हम चाहेंगे कि कार्यक्रम को संपन्न किया जाए। आयुष से पहले मैं बस वही एक ही बात कहना चाहूंगा कि आज हमें जान भी जहान भी ध्यान रखना है, जीवन भी जीविका भी। जी, प्राकृतिक खेती, जैविक खेती को बढ़ावा देना है और घरों में प्राकृतिक जैसे काढ़ा है, योग है, श्रम है, ध्यान है, अच्छी निद्रा है, समय से सोना, इसका भी हमारे युवा लोग ध्यान दें। देयर इज नो रीजन कि हमारा देश पूरा एक बार सोने की चिड़िया ना हो जाए और कृषि ऋषि परंपरा, गुरु शिष्य परंपरा ना आ जाए। ये देश जानते हो, ये विद्यार्थी लोग कहना चाहता हूँ कि देश सिर्फ गुरु शिष्य परंपरा की वजह से ही आध्यात्मिक गुरु था। वो परंपरा कहीं हमारे गुरुकुल में खो गया है, आजकल नहीं है। अगर ये परंपरा वापस लाने में आप लोगों का बहुत योगदान हो सकता है। तो गो अहेड विद द कृषि ऋषि परंपरा, गुरु शिष्य परंपरा। थैंक यू। थैंक यू डॉक्टर साहब। ये हमें लगता है कि एक सेशन आपका हमें प्राकृतिक जीवन शैली के ऊपर और जो ऑर्गेनिक खेती है उसके ऊपर भी हम रखना चाहेंगे, और आपकी अनुमति से उसके लिए हम समय भी तय करेंगे। स्त्रियों के ऊपर भी विशेष जो ध्यान देने की बात कही, उनको भी मुख्य धारा में शामिल करने की बात कही, ये भी हम सबके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। और मुझे लगता है कि हमारे सभी श्रोता इसका भी विशेष ध्यान रखेंगे जब भी वो किसी कार्यक्रम की योजना बनाएंगे। आयुष, अब आपका फ्लोर है, आप इस कार्यक्रम को संपन्न करने की ओर ले। Yes, and thank you so much, ma'am, and thank you so much, sir. And first of all, I am very sorry that I was not able to listen whole of the lecture of the sir, because I was being disconnected because of the network problem, and I'm very sorry for that. So as today's topic was a farm bill and the labor law amendment act, and I think we all have got understood all the things, all the perspective and all the angles and all the things which are being there in the bill and in the act, we have got understood very nicely. तो मुझे इसमें एक चीज समझ में आती है कि हम लोगों को अंधेरे से तब तक डर लगता है जब तक वहां पे रोशनी ना हो। तो इसी तरीके से हमें किसी भी चीज से तब तक विरोध करते हैं जब तक हमें उस चीज के बारे में पूरी जानकारी ना हो। तो आई थिंक वी आर 12 or 13 people present in this session. I think we have got whole information, and now we have been we can be considered as a light or for the farmers. हम उनको भी ये चीजें जानकारी समझा सकते हैं ताकि वो इस तरीके के विरोध में पार्टिसिपेट ना करें और इस तरीके की जो उनको गलत बातें पहुंचाई जा रही हैं जिससे वो मिसलीड हो रहे हैं अपने पास से कि व्हाई दिस एक्ट इज नॉट बेनिफिटिंग देमसेल्फ। किसी फार्मर्स को तो ये लग रहा है दैट द एमएसपी इज गोइंग टू बी रिड्यूस, एमएसपी हटा दी जाएगी, एमएसपी इज गोइंग टू बी रिमूव फ्रॉम दिस एक्ट एंड बिल। So there is a lack of knowledge, and there is a, as we all know, that the knowledge is a thing which is going to calm your mind and is going to understand you very nicely. So I think we 12 or 13 people can take a oath, I could say, to understand 4 or 5 farmers that why this act is going to benefit you itself, and it's not going to target you anymore. And this is for you, and this is going to help you for going and enriching your produce which is going to happen from your fields. So with this note, I would like to wrap our session,
and I think this was a very And wonderful. Ayush, I would like to just correct you that Yes. once it is uploaded, we are having lakhs and lakhs of Lucknow University and college students. They are going to learn a lot about farmers' bill from this video. We are going to upload it. So this is the beauty of the technology, that though in the live session we could not connect with all the people, and we never wanted it because it is not feasible to connect everybody in this meeting. But then through YouTube and through our university forum and through OSH forum, we are going to give this message to many people, including our students and rest of the citizens of India also. So they all are going to be our ambassadors once they listen to this a very explanatory speech of Dr. S.K. Singh Saab. So thank you so much. And now we can wrap up the session. Yes. Thank you, Thank madam. you so much. Thank you so much, sir, and thank you so much, ma'am. Okay, I Ayush, think I'm very happy that you have a lot of knowledge about. Knowledge is everything, I tell you. yes, आधे sir. घंटे केबीसी में बैठ जाते हो और 7 करोड़ जीत के आ जाते हो. तो नॉलेज इज एवरीथिंग, इंफॉर्मेशन इज एवरीथिंग. Keep it in your mind. You are the top of the world. You are the king. You are in the kingdom of the God. Just have information, and nothing like information. ज्ञान ही सब कुछ है, चाहे वो भौतिक हो चाहे वो आध्यात्मिक हो. ज्ञान नहीं जीवन नहीं, ज्ञान है जीवन है. थैंक यू. थैंक यू सो मच. थैंक यू सो मच डॉक्टर साहब. आप सब लोगों का बहुत बहुत आभार. और डॉक्टर आप पुनः मिलेंगे हम लोग इस फोरम पे जल्दी ही. इसी आशा के साथ आपसे विदा लेते हैं. थैंक यू सो मच. थैंक यू. Thank you so much, ma'am, and thank you so much, sir. So now this is the time to wrap our session formally. So I would like to end with a positive note that be the change that you want to see in the world. And OSH has also the motive that be the change, give the positive change in the society. And that's it for the session. And now it's the wrap for the session. And thank you so much, sir. बड़ा इम्प्रूव किया कि be the positive change, not only the change but the positive change. That's Yes, sir. appreciated. Thank you. Yes, sir. Thank you, sir. Okay, namaskar.